22 of January, द प्राण प्रतिष्ठा समारोह। अब 20 दिन से कम वक्त अब रह गया, जहां तक हम देख रहे हैं कि रामलला का जो मूर्ति है वो जिस तरह से सैंक्टम सैंक्टोरम में अब उसे लगाया जाएगा और वहां पर जो मूर्तिकार है अरुण योगीराज, यहां पे बताया जा रहा है कि कम से कम 3 मूर्तियां सिलेक्ट हुई थी, उनमें से एक को सिलेक्ट करना जाना था और यहां पे जो बाकी 2 मूर्तियां हैं उन्हें भी जगह मिलेगी अयोध्या में राम मंदिर में। Now the temple trust has categorically stated that this was not a competition and all of the idols that have been made by the sculptors will be placed in the Ram Mandir. कि तैयार हो गई कि नहीं हो गई है, तीनों मूर्ति बन के तैयार है, तीनों का उपयोग मंदिर में होगा। इसमें कोई कंपटीशन नहीं था, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं। तीनों ही मूर्तियां आवश्यक थी। 3 जगह मूर्ति प्रतिष्ठापित होंगे, तीनों मूर्ति इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। Now, also let's take you through as far as the different artists are concerned who has made the Lord Ram idols that will be placed in the Sanctum Sanctorum and the materials that were used by one. The chosen one is Arun Yogiraj, the sculptor who worked on a white grey semi-granite rock for his idol, while the second artist is Ganesh Bhatt, who worked on black greyish Nelikari rock. It is also known as Shamshila and which has been extracted from Karnataka. The third sculptor is Satyaranayan Pandey, who worked on the Mite Makrana, which is the मार्बल स्टोन। नाउ अगर दर्जी की भी बात की जाए तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो दर्जी 1980 के जहां तक दशक से रामलला के लिए जो कपड़े बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस स्पेशल ओकेजन पे पीले रंग का जो वस्त्र है वो भगवान को पहनाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। और दर्जी और उनकी परिवार से भी हम बात करी और उनसे भी सुना कि आखिरकार उन्हें बुलाया गया है कि जो नई मूर्ति है जो लगाई जाएगी राम मंदिर में, उनका जो मेजरमेंट्स है वो लिए ताकि नए कपड़े, नए वस्त्र रामलला के लिए तैयार की जाए। It's just a matter of hours before the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust to officially announce which is a sculpt which will be going on the Ram temple in Ayodhya. But all indications are pointing out that Mysore's Arun Yogiraj structure design has been approved and will finally be announced. Arun has already sculpted the Adi Shankaracharya statue and other such statues are much remote. But today in Mysuru, where we are right now, the Times Now exclusive visits and has spoken to the family about the process. It went through a journey for almost 6 months. The family says that Yogiraj was busy sculpting the statue which is going to be installed at the consecration ceremony on January 2022 in Ayodhya. This is was one of the 3 sculptures chosen by the Tirth Trust. Ganesh Bhatt from Bangalore and Satyaranayan Pandey from Rajasthan were 2 other sculptors whose designs were approved by the Kshetra Trust. But now all indications point that Arun Yogiraj's design has been finally approved by the Tirth Trust. Like I said, Arun has already also sculpted a 12-feet statue of Adi Shankaracharya and Kedarnath, and he's also made a 21-feet tall Hanuman statue in Mysuru. Already he comes from a family of 5 generations of sculptors, and now there is excitement and enthusiasm, and the family feels proud that his design has been finally accepted for the consecration ceremony on January 22nd at Ayodhya. जैसे 1985 में हमारे श्री पिताजी यहाँ लालदास जी हमारे पुजारी थे राम जन्मभूमि के, उनके माध्यम से हमारे पिताजी रामलला का पोशाक सिलने के लिए राम जन्मभूमि में गए। एक मशीन ये और एक मशीन ये, 2 मशीन वहाँ गुम्बद के नीचे, जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, गुम्बद के नीचे धरी जाती थी। पिताजी हमारे यहाँ मनिया करते थे, मतलब कपड़ा काटते थे। हम दोनों भाई भगवत राज पहाड़ी और मैं शंकर लाल वहाँ बैठ के सिलते रहे और पिताजी मनिया करते रहे। ढांचा गिरने के बाद हम लोग फिर वहाँ जाना बंद कर दिए। पुजारी जी के माध्यम से पोशाक यहाँ आता रहा और हम लोग पोशाक सिल करके पुजारी जी को दे देते थे। अब देखें तो स्थापना में पीला वस्त्र धारण होता है और दिन पड़ रहा है 22 तारीख को सोमवार, तो उस दिन सफेद पोशाक भी तैयार होगा। अब कपड़ों की बात हो गई तो भोग की भी बात कर लेते। जो पान सेलर है दीपक, जिनका नाम बताया जा रहा है अयोध्या में, ही इज एक्सप्लेन्ड हाउ पान इज ऑफर्ड एज भोग टू रामलला। Well, just before January 22nd, Ram Mandir consecration ceremony, massive preparations are underway. And as far as Lord Shri Ram is concerned, what to offer to Lord Shri Ram after the consecration, it is
pan which also is being offered to Lord Shri Ram. हमारे साथ दीपक है जो बताएंगे जिनके पास जनवरी 22 के लिए भी पान बनाने का ऑर्डर आया है और क्या महत्व है, क्योंकि हर भोजन के बाद रामलला को पान का भोग भी चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कब से आप लोग रामलला को पान का भोग चढ़वा रहे हैं? क्या कुछ इसमें अलग से होता है अगर आप बताएं, क्योंकि रामलला है, बचपन का स्वरूप है उनका, बाल स्वरूप में वो वहाँ पर रखे जाएंगे, तो उसमें क्या अलग होता है और आप की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? पुराणों में भी पान का बहुत महत्व है और परंपरा सदियों से चली आ रही है। पुरातन तत्व में भी पान का उल्लेख मिलता है। भगवान पहले भी पान खाते थे और सदियों से ऋषि मुनि जो है ये पान का भोग भगवान को अर्पण करते थे। पान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जब तक पान का सेवन नहीं होता भगवान को, तब तक ये पूजा अधूरी मानी जाती है। जो ये पान जा रहा है हमारे यहाँ से रामलला सरकार को जाता है और ये भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को, तो ये भोग में भगवान को लगेगा उस दिन पान। अच्छा। ये सादे पत्ते के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे सादा पत्ता है ये आपके यहाँ जैसे घर पे कथा होती है तो उस समय कथे में भी ये प्रयोग होता है। खड़ी सुपारी प्रयोग होती है, तो उस हिसाब से जो भगवान की जो वहाँ पे प्रतिमा स्थापित हो रही है और सादा पत्ता जो है, ये सादा पत्ता 151 सादे पत्ते रहेंगे जिसमें खड़ी सुपारी जैसे गौरी गणेश की पूजा होती है उसी हिसाब से पान के पत्ते सादे में रहेंगे। और ये जो आप ये देख रहे हैं पान लग रहा है, ये भगवान के बाल रूप में भोग के लिए लगता है।